میرا سایہ میرے چاہنے والے پر، جیسے کہ آسمان کا سایہ زمین پر. اور غوث اعظم کیا فرماتے؟ انا یدی، میرا ہاتھ. کیا ہاتھ ہے؟ اور اس ہاتھ کی لمبائی چوڑائی پر وہ فرماتے ہیں، فرما تو رہے ہیں بغداد میں، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ. ہاتھ تو ایک ہے، عبد القادر جیلانی تو ایک ہے، مگر فرماتے میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر. چاہنے والے کہاں کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب جہاں جہاں چاہنے والا ہے وہاں وہاں غوث اعظم کا ہاتھ ہے. جہاں جہاں چاہنے والا ہے وہاں وہاں عبد القادر جیلانی کا سایہ ہے. اب چاہنے والا اگر زمین پر ہے تو ہاتھ زمین پر ہے، چاہنے والا قبر میں ہے تو ہاتھ قبر میں ہے، چاہنے والا پہاڑ کی بلندی پر ہے تو ہاتھ پہاڑ کی بلندی پر ہے، چاہنے والا طوفانوں کے درمیان ہے تو ہاتھ طوفانوں کے درمیان ہے، چاہنے والا جلوت میں ہے ہاتھ جلوت میں ہے، چاہنے والا خلوت میں ہے ہاتھ خلوت میں ہے، چاہنے والا بھارت میں ہے ہاتھ بھارت میں ہے، چاہنے والا دنیا کے کسی خطے میں ہے، عبد القادر جیلانی کا ہاتھ اس خطے میں ہے. جہاں جہاں مرید وہاں وہاں پیر دستگیر. ایسا ہاتھ، اسی لیے میں کہتا ہوں ہم امتی ہیں، تم امتی ہو، امتیو ایسا ہاتھ تلاش کرو جو غوث اعظم کے ہاتھ کی مثال بنے. ایسا ہاتھ لاؤ جو عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کی نظیر بنے. ارے دوستو، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب عبد القادر امتی کے ہاتھ کی مثال نہیں لائی جا سکتی تو اس امتی کے نبی کے ہاتھ کی مثال کہاں سے؟ میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر، میرے چاہنے والوں پر. اب میرا جہاں مرید ہے، اے مریدو بے قرار نہ ہونا. تم مجھے چاہتے ہو، میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے، میرا سایہ تمہارے ساتھ ہے. تم بے چین نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تم بے قرار نہ ہونا، اپنے کو بے سہارا نہ سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. یاد رکھو، یہ بغداد دور ہے، بغداد والا دور نہیں ہے. اجمیر دور ہے، اجمیر والا دور نہیں ہے. کلیر دور ہے، کلیر والا دور نہیں ہے. ارے بھاگلپور کے سنی مسلمانوں، تم پنجاب میں رہو تو بھاگلپور دور ہے، شہباز محمد دور نہیں ہے. سلطان العارفین اولیاء کرام کا یہ اقتدار ہے، یہ اختیار ہے اولیاء کرام کا. اب بتائیے، ان کے پاس جو کچھ تھا کیا ہے، اس کا ماخذ کون؟ مولا فاتح خیبر شاہ زمان. وہاں سے چلا، وہاں سے چلا، علم چلا، نجف سے چلا، کربلا پہنچا، کربلا سے چلا، بغداد پہنچا، بغداد سے چلا، اجمیر پہنچا، اجمیر سے چلا، گوالیار پہنچا، گوالیار سے چلا، احمد آباد پہنچا، احمد آباد سے چلا، بھاگلپور پہنچا. اور یہ سلسلہ اب تک نہیں، صبح قیامت تک جا. معلوم ہوا علم کی دھمکی ہمیں کوئی اور نہ دے، علم کی دھمکی ہمیں کوئی اور نہ دے. ارے تم نے پڑھ کر علم لیا ہے، مگر صاحب سجادہ کو جو علم ملا ہے ان کے کرم سے ملا ہے، ان کی عطا سے. اگر یہ نفس پاک ہوتا تو وہ اپنے آپ نا پھر یہ بیماری جنم نہ لیتی. آج اس میں آنے والوں صاحب سجادہ انتخاب میاں صاحب نے اعلان کیا، مفتی صاحب نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا؟ شریعت پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ کرنا،
नशिस्त में 3 तलाक न देना, है ना? लेकिन याद रखो, वो तो सही है कि एक नशिस्त में 3 तलाक देना गैर इस्लामी रविश है, मगर ऐसी कोई सूरत पैदा हो जाए, अगर दे दी जाए तो तलाक होगी। ये हक सिर्फ मर्द को है, ये हक है सिर्फ मर्द को है, औरत को नहीं। ये शरीयत का कानून है। किसी राय शुमारी की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज अब तो ये सब जासूस है ना, यहां बोलो वहां खबर पहुंचती है। तो हम भी चाहते हैं कि खानकाह शहबाजिया का ये ऐलान सिर्फ बिहार की सरहदों तक न रहे, दिल्ली तक पहुंचे कि हिंदुस्तान का मुसलमान लाचार नहीं है। हम भारत के संविधान को मानते हैं, मानते हैं, मानते, ईमान नहीं लाते। मानना और है, ईमान लाना और है, लेकिन हम शरीयत पर ईमान लाए हैं। हम शरीयत को मानते हैं, मानने का मतलब क्या हुआ? उस पर हमारा ईमान है, इस पर चर्चे की जरूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी कोर्ट से जजमेंट आ भी जाए, जब भी हिंदुस्तान का दुनिया का मुसलमान नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, हम वो मानेंगे जो रब कहेगा, वो मानेंगे जो रसूल कहेंगे, वो मानेंगे जो हदीस कहेगी, वो मानेंगे जो कुरान कहेगा, जो इस्लामिक लॉ कहेगा। लिहाजा अगर कोई ऐसी हालत पैदा हो जाए तो मुफ्ती साहब ने मूवी पढ़ के सुनाया है, फिर आए आप दारुल्फता की तरफ रुजू हो, यानी मेरी तरफ रुजू, फिर मैं आपसे सुनूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, उसको देखूंगा, तो वाकई मामला नहीं बन रहा है तो खूबसूरती के साथ एक अच्छी सिचुएशन में तलाक दी जाए। लेकिन तलाक देना बात दाल में नमक नहीं है। 3 तलाक रोटी मोटी है, 3 तलाक, चावल कच्चा है, गला नहीं, 3 तलाक। बंद करो इस हरकत को, बंद करो इस नापाक अमल को। बीवी है, उसे खिलौना नहीं है, वो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। और ने उसकी अहमियत दी है, उसका भी एक मकाम है, औरत का एक मकाम है, औरत की अजमत है, उसका ख्याल रखे, है ना? वो तो शीशा है, ज्यादा कोशिश करोगे टूट जाएगा। तो औरत का मकाम है, तुम्हारी हैसियत है, औरत की और वो हैसियत है। इस्लाम ने दोनों को मकाम दिया, मगर तलाक इसे, इसका हक किसे है? बोलो। अच्छा ये बताओ, कश्मीर किसका है? बोलो। हमारा है ना, कश्मीर हमारा है ना, इस पर रायशुमारी चलेगी। कश्मीर हमारा है, हमने मान लिया, हमने मान लिया। मान लेने का मतलब ईमान नहीं, वरना खुदा न खास्ता ये कश्मीर फिर कट के अगर पाकिस्तान में चला जाए तो क्या मतलब? हमारा ईमान भी चला गया पाकिस्तान। हमने कश्मीर को माना, हमारा है, किसी रायशुमारी की जरूरत नहीं। हमने शरीयत को मान लिया, हमारी है, किसी रायशुमारी की जरूरत नहीं है, किसी अदालत की जरूरत नहीं है, किसी जज की अदालत पे दस्तक देने की जरूरत नहीं है। शरीयत शरीयत है, हम जब तक जिंदा रहेंगे उसी पर अमल करते रहेंगे, उसी को मानते रहेंगे, उसी को गले लगाते रहेंगे। शरीयत के खिलाफ साजिश करने वालों होश में आओ। मानेंगे तो अपनी रब की मानेंगे, अपने नबी की मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे। एक नहीं, कई बंदी करो, बंदियों का हम पर कोई असर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे हमारा ताल्लुक है, इनसे हमारा रिश्ता, शहबाज मोहम्मद सरकार से हमारा रिश्ता, औलिया अल्लाह से हमारा ताल्लुक है, औलिया इकराम से हमारा
कभी न छोड़ना। अगर तुम चाहते हो कि तुम आबाद रहो, तुम्हारा खानदान आबाद रहे, तुम्हारा परिवार आबाद रहे, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे, तुम्हारी दुनिया आबाद रहे, तो दोस्तों औलिया अल्लाह से रिश्ता कभी न तोड़ना, इनकी मोहब्बत को अपने दिल में जमाए रखना, इनकी अकीदत को अपने दिल में जमाए रखना। आज तुम जो सारी रात बैठे हो किसके लिए? हमारे लिए नहीं बैठे हो, सुल्तानुल आरिफीन के लिए बैठे हो, शहबाज मोहम्मद कलंदर के लिए बैठे हो। याद रखो ये वो हस्ती है कि अगर एक हाथ उठाएंगे तो एक हाथ इनका तनहा नहीं होगा। मैं जानता हूं दोस्तों, चलते चलते ये भी सुनते जाओ, मखदूम सैयद शहबाज मोहम्मद का उठा हुआ हाथ उनका तनहा हाथ नहीं है, उस हाथ में मुल्ला यासीन का हाथ है, उस हाथ में शहबाज मोहम्मद के हाथ में शेख वजीहुद्दीन गुजराती का हाथ है, उस हाथ में अताए रसूल मोइने बेकसा गरीब नवाज का हाथ है, इनके हाथ में अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम का हाथ है, इनके हाथ में हुसैन शहीदे करबला का हाथ है, इनके हाथ में फातह खैबर अली मुश्किल कुशा का हाथ है, इनके हाथ में खुद मदनी सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक हाथ हमने पकड़ लिया, एक हाथ में न जाने कितने हाथ हैं दोस्तों। इसलिए हम न कल अकेले थे, न आज अकेले हैं, न कल तनहा थे, न आज तनहा है, न कल बेसहारा थे, न आज बेसहारा है। अरे सोचो, जिसके पास गरीब नवाज, जिसके पास मखदूम अशरफ, जिसके पास नूरुल ऐन, जिसके पास सैयदे सालार मसूदे गाजी, जिसके पास मखदूम शाह मीना, जिसके पास मखदूम शेख सफी, जिस जमात में शाह बरकतुल्लाह मारहरवी हो, जिस जमात में सरकार वारिसे बात हो, जिस जमात में सुल्तानुल आरिफीन मखदूम शहबाज मोहम्मद हो, जिस जमात में औलियाए किराम हो, वो जमात न कल तनहा थी न आज तनहा है, वो उस जमात का नाम है अहले सुन्नत। अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, यही वो जमात है जो सहाबा की जमात है, यही वो जमात है जो अली मुर्तजा की जमात है, यही वो जमात है जो हसन मुस्तफा की जमात है, यही वो जमात है जो हुसैन शहीद करबला की जमात है, यही जमात गंजे शकर की है, यही जमात गंजे नबात की है, यही जमात सरकार गौसे आजम की है, यही जमात गरीब नवाज की है, यही जमात मखदूम शहबाज मोहम्मद की है, यही जमात हमारी है, तुम्हारी है, सारे। दोस्तों हम अहले सुन्नत हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, हम अहले सुन्नत हैं, ये सीना ठोक कर कहते हैं। तो चलते चलते मैं इस सुन्नत की भी परिभाषा आपके सामने रख दूं, ताकि मेरे जाने के बाद बहुतों की भाषा बदल जाए। सुन्नत क्या है तो बहुत सुना होगा, सुनते चले आ रहे हैं। मैं आपसे एक अलग से बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप पैदा हुए या नहीं? बोलो, पैदा हुए? जितने नहीं पैदा हुए हैं हाथ उठाएं, और जितने पैदा हो गए वो हाथ उठाएं। पैदा हुए? पैदा हुए? किसने कहा था पैदा? किसने कहा पैदा हुए? हाँ हुए। ये सवाल आप हमसे कहते हैं, हजरत आप भी तो पैदा हुए। हाँ पैदा हुए, आप भी पैदा हुए। मुफ्ती साहब भी कह सकते हैं, मुफ्ती साहब पैदा हुए। मुझे हजरत ये क्या कह रहे हैं आप? पैदा ना होता तो पान कैसे खाता? पैदा ना होता तो एटीएम में लाइन कैसे लगाता? पैदा ना होता तो बटन कैसे दबाता? पैदा हुआ। अच्छा एक बात बताएं, ये गड़बड़ हुई कि नहीं? अगर पैदा ना हो तो बीमारी आती, सर में दर्द है, क्यों? पैदा बुखार है, पेट खराब है, पैदा हुए, दस्त आ रहा, पैदा हुए। न पैदा होते न सर में दर्द होता, न पैदा होते जाफरी साहब न बुखार आता, न पैदा होते बीमारियां होती, न पैदा होते भाइयों बहनों, जल्दी पहुंचो भाई, न भाषा सुनने को मिलता। ये पैदा होने की सजा है।
नहीं पड़ेगा। साहब से तेल बेच रहा, बोले कड़क चाय, कड़क चाय। मैंने कहा चाय बना दी, मगर तो ये नहीं मालूम इतनी कड़क चाय बनाई, उस पर पत्ती इतनी डाल दी कि उसके हलक से नीचे नहीं उतर रही है। ऐलान कर दिया 8-12 बजे के बाद लोग कांप गए। दौना वालों ने कहा अब क्या करें, माल लाना था, नोट तो गई, 1000 भी गया, 500 भी गया। आज 12 बजे के बाद 6500 कागज का टुकड़ा रह जाए। ऐलान कर दिया, बाद में फंस गया। ये ऐलान मुसीबत बना हुआ। एक साहब ने आगे कहा हजरत घर पे आए, पुराने आदमी थे, उन्होंने हजरत मेरी तबीयत टूट गई। मैंने कहा किस बात से? बोले पैसे से। पैसे से। मैंने क्या बात? बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, मगर निकाली कैसे? इतनी भीड़ है हर एटीएम पर है, इतना कभी किसी ने एटीएम का चक्कर नहीं बैंक में लगाया होगा जितना इधर 15 दिन से लगा रहे हजरात। ये ऐलान आपने सुना, हमने भी सुना। कितनी तकलीफ हो रही, कितनी तकलीफ हो रही। आज देखिए कि ज़ाहिरीन भी जिम्मेदार नहीं। यहाँ जो कुछ पेश किया, किसी ने गलती से 5 का प्रोग्राम फॉलो नहीं किया, ताकि मीनाई साहब को बात में तकलीफ ना। देखिए साहब, कानून का फैज था, वो फैज बढ़ रहा था, लोग भी समझ गए थोड़े दिन की मुसीबत है। हो सकता है कि साहब कुछ और नरमी आए, कुछ और नरमी आए। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है, वजह सिर्फ ये कि हम पैदा हुए। दिन में तकलीफ, रात में तकलीफ, सुबह तकलीफ, शाम में तकलीफ। अब प्याज नहीं है तकलीफ, लहसुन नहीं है तकलीफ। अब मुफ्ती साहब कहते हैं कि सोया मेथी नया आलू, क्या कहना, बिहार का फसल खाना चाहिए, क्या कहना। वो सब्जी वाला, ठेले वाला लेने को तैयार भी नहीं है। बड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत आई ना, ये क्यों आई? इसलिए पैदा ना होते नहीं ये मंदिर में। अच्छा चलो भाई, पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? किसने कहा था पैदा हुए? क्यों पैदा हुए? उसका जवाब यूं दीजिएगा, पैदा इसलिए हुए कि पैदा होना सुन्नत, पैदा होना सुन्नत जरूरी था कि हम पैदा हो। अब यहाँ हमारा सफर सुन्नत शुरू है। माँ के पेट में रहे, क्यों? पेट में रहना सुन्नत। उससे पहले आलम अरवाह में, क्यों? आलम अरवाह में रहना सुन्नत। अब हमारा सफर सुन्नत वहां से शुरू है। हम सुन्नी पैदा होने के बाद नहीं बने। इसलिए हमारी जमात पर, हमारी सुन्नियत पर आंच नहीं आएगी। हम पैदाइशी आए, नहीं किया। इस दुनिया में आने के बाद हम सुन्नी बने। हम आलम अरवाह में थे सुन्नी, टनाटन, टनाटन। माँ के पेट में आए टनाटन, 8 महीने 9 महीने रहे टनाटन। पैदा हुए सुन्नी, पैदा हुए इसलिए पैदा होना सुन्नत। अच्छा जब बच्चा पैदा होता तो कान में अजान देते हो कि नहीं? क्यों? अजान देना सुन्नत। बच्चा बड़ा होता है तो शादी करते हो नहीं? क्यों? शादी करना सुन्नत। बच्चे पैदा होते, पैदा होना सुन्नत। वलीमा करते हो, वलीमा करना सुन्नत। मेहमानों को बुलाते हो, बुलाना सुन्नत। खिलाते पिलाते हो सुन्नत। इज्जत देते हो सुन्नत। क्या बात है, क्या सफर है, क्या सफर है। लखनऊ से मैं चला भागलपुर आया। सफर में मुझे इतना मजा नहीं आया जो आज इस सफर में मुझे मजा मिल रहा। अगर ऐसा सफर मुझे उम्र भर करना पड़े तो मैं करता रहूंगा, और इंशाअल्लाह थकने वाला नहीं, क्योंकि ये सफर सुन्नत है ना, सफर सुन्नत है। अच्छा अब
تجارت کرتے ہو تجارت کرنا سنت. ولیمہ اولمو بخاری شریف کی حدیث ہے, اولمو ولو کے شاطی, اگرچہ ایک ہی بکری صحیح, ولیمہ کرو حسب استطاعت ولیمہ کرو. کیوں؟ ولیمہ کرنا سنت. بڑوں کا احترام کرو.